یہ محنت نظر آنی چاہیے. ڈونٹ وری سر، ہو جائے گا. گڈ لک. چلیے پھر آپ لوگ کام پہ لگے. تھینک یو. ارے راہم وہ مذاق کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ آفس کے کام میں بھی میری بہت ہیلپ کرتا ہے، اور اگر میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں نا تو وہی مجھے گھر ڈراپ کرتا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ وماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ کیا کر دیا ہے میں نے؟ کیا حرکتیں کرنے لگ گئی ہو؟ یہی تو کہہ رہی ہوں. انسان ہوں میں، تھک جاتی ہوں. کیا ہو گیا ہے تمہیں مسکان؟ نہ گھر کی دیکھ بھال، نہ زاویار کا خیال، بیٹھی پھول توڑے جا رہی ہو، اور کتابیں تو بالکل ہی بند کر کے رکھ دی ہیں تم نے. اور کیا مطلب ہے؟ پورا گھر میں سنبھالتی ہوں، زاویار کو میں سنبھالوں؟ یہ تمہارا گھر ہے، تم نہیں تو اس کی دیکھ بھال کرنی. یہ غلط طریقہ ہے بیٹا. امی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں نے ایگزامز دیے اور رزلٹ آنے کا ویٹ کر رہی ہوں. امی یہ صرف میرا گھر نہیں ہے، ایمان آپی کا بھی ہے. یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا؟ ارے تو آفس کے نام پہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور پیچھے سے گھر بھی میں سنبھالوں اور پھر ان کا بچہ بھی میں سنبھالوں. تمہیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے. تم جانتی ہو نا وہ کتنے بڑے صدمے سے گزر رہی ہے بیٹا. یہ آج کل تم اتنی بدزن کیوں رہنے لگ گئی ہو ایمان سے؟ ہاں تو امی میں ہی سمجھتی رہی ہوں سب کو، مجھے کون سمجھے گا؟ میں سمجھتی ہوں نا تمہیں، میں ہوں نا. بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیوں تم اتنے ذہنی تناؤ کا شکار رہنے لگی ہو؟ بس امی پتہ نہیں آج کل مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. یہ میری جان ہو تم. میں اور تمہارے ابو تم دونوں بہنوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے خدا کا واسطہ ہے مجھے پریشان مت کرو، اپنا موڈ اچھا کرو بیٹا. تم ہنستی مسکراتی ہو تو یقین کرو ہماری جان میں جان رہتی ہے. گھر کے سارے کام میں دیکھ لوں گی. خوش؟ آج تم آرام کرو. نہیں امی میں آپ کا ہاتھ بتا دوں گی. اچھا زاویار کی طرح. یقین کرو صبح سے میرے کمرے میں اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتا ہے کہ میری خالہ کہاں ہے. ڈھونڈ رہا ہے وہ تمہیں. امی میں پھر زاویار کے پاس جاتی ہوں. اپنی ساس کو سمجھا دے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہیں. میری اماں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ ایسے بول رہی ہیں؟ تم چپ رہو، بیچ میں مت بولو. یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے. چپ چاپ کھڑی رہو یا چلی جاؤ یہاں سے. مداخلت مت کرنا بیچ میں. میں کیوں چلی جاؤں؟ میری اماں کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ. شاویر کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو انہیں؟ تو جو بات ہوگی وہ میرے سامنے ہی ہوگی. بات کرنے کی تو تمیز نہیں ہے. وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کس میں کتنی تمیز ہے. مانور پلیز باہر جاؤ، میں امی سے بات کر کے آ رہا ہوں. جاؤ. میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. میں کہیں نہیں جاؤں گی شاویر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ میری اماں کے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں. رکو تم بھی اور سنو اپنی ماں کی کارستانی. کیا؟ اس نے مہک کو تعویذ گنڈوں پہ لگا دیا. تمہاری ماں اس گھر کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہے. آپ جھوٹ بول رہی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ مجھے کیا ملے گا جھوٹ بول کے؟ شاویر یہ تمہاری ساس بہت شاطر عورت ہے. اس نے اس گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا. آج تک اس گھر میں کبھی تعویذ گنڈوں کی بات نہیں ہوئی. رخسانہ آنٹی اس طرح کیسے کر سکتی ہیں؟ امی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے خود سنا ہے بیٹا، اور مہک بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہے. تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا نا؟ جی. بلاؤ اس کی ماں کو. امی کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تمہارے سامنے حقیقت آ جائے.
क्या ये सच है? शावीर मैं नहीं जानती, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें गलत फहमी हो रही है। और तुम जानते हो ना, मेरी अम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब यहाँ के चेहरे पर पहले हैरत आई, फिर गुस्सा भड़का। क्या खाना चोरी? किसने किया ये? अचानक महनूर की माँ पीछे से हिकलाते हुए बोली, जैसे कोई पकड़ा गया हो। वो खाना तो मैंने खा लिया था। फबिहा आग बगोला हो गई। हाँ, आपने अम्मी के हाथ का बनाया हुआ अलमीर के लिए रखा हुआ खाना, आपको शर्म नहीं आई? महनूर जो कमरे से बाहर निकल आई थी, फौरन अपनी माँ की तरफ खड़ी होकर बोली, इतनी सी बात पर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? फबिहा ने तड़प कर जवाब दिया, इतनी सी बात? मेरी अम्मी रो रही है, उनकी मेहनत का खाना चोरी हो गया और तुम कह रही हो इतनी सी बात? घर का माहौल तप्श से भर गया था। बहस का शोर बढ़ने ही वाला था कि अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, आसिफ साहब को गोली लग गई है। अलियान दौड़ता हुआ अंदर की तरफ गया। इम्बर हवास बख्ता हालत में बार बार दौड़ा रही थी। अलियान, प्लीज मेरे अबू को कुछ हो जाएगा, कुछ करो, प्लीज कुछ करो। आसिफ साहब फर्श पर पड़े थे, जिस्म से खून बह रहा था, सांसें टोट टोट कर आ रही थीं। घर में भगदड़ मच गई। एक तरफ फबिहा की अम्मी के खाने की चोरी पर झगड़ा, दूसरी तरफ साया बनकर मौत का खतरा। अलियान ने बमुश्किल अंबर को संभाला, फिर सबको पीछे हटाते हुए बोला, सब खामोश हो जाएं, पहले हम आसिफ साहब को अस्पताल लेकर जाएंगे। लेकिन पस मंजर में खड़ी महनूर की माँ अब भी खुद को सही है साबित करने में लगी थी। मैंने खाना ही तो खाया था, इतना बवाल क्यों? फबिहा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अभी भी बहस कर रही हैं आप? घर में अफरा तफरी, आंसू और खौफ, और उस सब के बीच आसिफ साहब की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थीं। आसिफ साहब को गोली लगने की खबर ने पूरे घर के माहौल को जैसे मातम गद्दा बना दिया था। बाहर सहन में होने वाली चीख व पुकार और खाने की चोरी पर शुरू होने वाला झगड़ा अचानक सबके लिए बेमानी हो गया। अलियान ने तेजी से आसिफ साहब को संभाला। उसके हाथ खून में भीग रहे थे, मगर उसका दिमाग बस एक ही बात पर मरकूज था, वो ये दिक्कत कम है, फौरन अस्पताल ले जाना होगा। इम्बर की हालत सबसे बुरी थी। वो अपने बाप के घटनों के पास बैठ कर लपक लपक कर रो रही थी। अलियान, प्लीज, मेरे अबू को कुछ हो जाएगा, प्लीज जल्दी करो। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस बेतरतीब थी और आंखों में खौफ, बेबसी और दर्द सब कुछ इकट्ठा था। महनूर की माँ, जो कुछ देर पहले तक अपने आप को बेकसूर साबित करने में लगी थी, अब भी हैरान परेशान खड़ी थी, जैसे उसे समझ ही न आया हो कि सब कुछ अचानक किस समत पलट गया है। फबिहा ने उसकी तरफ गुस्से और नफरत से देखा। दिल में जलता हुआ ख्याल उभर रहा था कि यही लोग इस घर में बदशगुनी लेकर आए हैं, जहाँ कदम रखते हैं फसाद ही फैलता है। फबिहा की अम्मी अभी भी सहमी हुई थीं। वो एक तरफ खड़ी कपड़े को मिट्टी में भेंचकर बार बार यही सोच रही थीं कि क्या मैं हमेशा इसी तरह बेइज्जत होती रहूंगी? मेरा बनाया हुआ खाना तक महफूज नहीं। मगर अब उनके दुख से ज्यादा बड़ा देख इनके सामने तड़पते आसिफ साहब की हालत थी। अलियान ने सबको एक झटके से पीछे हटाया। उसकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि सब खामोश हो गए। कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा, गाड़ी निकालो अभी। इम्बर की चीखें गूंजती रहें। फबिहा सहमी हुई खड़ी रही और महनूर की माँ घबराहट से अपने हाथ मसलती रही, जबकि पूरे घर के चेहरे पर यही सवाल लिखा था, क्या आसिफ साहब बच जाएंगे? घर की बदकिस्मती जैसे एक दम बढ़कर सब पर साया डाल चुकी। आसिफ साहब को गाड़ी में रखते हुए अलियान के हाथ बरी तरह कांप रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा बेरहमाना अज़्म उभरा हुआ था। ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं था। वो अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ाते हुए बार बार रेयर वे मिरर में इम्बर को देखता, जो पीछे सीट पर अपने अबू के सर को गोद में रखे जार व कितार रो रही थी। अबू, प्लीज आंखें मत बंद करें, प्लीज। इम्बर की हर सिसकी ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने दिल में कील ठोंक दी हो। उसके होंठ कांप रहे थे, सांसें खड़ी हुई थीं। आसिफ साहिब नीम बेहोश थे, कभी हल्की सी आंख खोलते फिर बंद कर लेते। खून मुसलसल बह रहा था। बेटा, फिक्र न करो, वो भी मुश्किल बोल पाए। मैं ठीक हो जाऊंगा, मगर उनके लफ्जों में वो ताकत नहीं थी जो किसी को दिलासा दे सके। घर में पीछे रह जाने वालों का हाल भी कुछ कम न था। फबिहा अपनी माँ को सहारा दे रही थी, जिनकी टांगें कांप रही थीं। बेटा, ये सब क्यों हो रहा है? हम कहाँ आ गए हैं
उनकी आवाज टूटती जा रही थी। फबियाहा ने लब काट कर जब्त किया, अम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखें। लेकिन खुद फबियाहा के दिल में तूफान मचा हुआ था। महनूर की माँ की हरकतें, घर के अंदर की बदतमीजी और अब अचानक ये हादसा, इसे यूं लग रहा था जैसे कोई मुसीबतें जानबूझकर इस घर पर नाजिल कर रहा हो। महनूर और उसकी माँ एक कोने में खड़ी थीं। महनूर की माँ घबराहट से अपने नाखून चबा रही थी। ये सब हमारी वजह से तो नहीं हुआ, महनूर ने तेजी से जवाब दिया। अम्मी, हर चीज अपनी तरफ मत खींचा करें, गोली लगी है उनको, हमारा उससे क्या वास्ता। मगर उसकी आवाज में भी खौफ छिपा हुआ था, जैसे दिल के अंदर कहीं ये एहसास हलचल मचा रहा हो कि शायद बदकिस्मती वाकई उनके कदमों के साथ साथ चल रही है। कुछ देर बाद अलियान ने अस्पताल के सामने गाड़ी रोक दी। नर्सें और डॉक्टर भागते हुए बाहर आए। स्ट्रेचर लाकर आसिफ साहब को अंदर मुंतकिल किया। एम्बर को रोक लिया गया मगर वो चीखती रही, मुझे जाने दें, मैं अपने अबू के साथ रहूंगी। नर्स ने उसे थाम कर कहा, बेटा हमें अपना काम करने दें, अगर रोएंगी तो आपके अबू को और तकलीफ होगी। एम्बर ने अपना मन्ना दोनों हाथों में छिपा लिया और ससकते हुए दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अलियान उसके पास आया, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तुम हौसला रखो। लेकिन खुद अलियान की आंखों में भी खौफ साफ नजर आ रहा था। उसे मालूम था हालात इतने आसान नहीं जितने वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अस्पताल के बाहर अंधेरी रात फैलती जा रही थी। हवा में बेचैनी तैर रही थी और अंदर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी, जो ये बता रही थी कि जिंदगी और मौत की कशमकश अभी जारी है। अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी उस कदर गहरी थी कि अंबर की सिसकियां भी दबकर सुनाई दे रही थीं। दीवार पर लगी घड़ी की टकटक जैसे हर्सिकुल्स के साथ सबके दिलों पर बोझ डाल रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई सरखबती पूरे माहौल में एक अजीब बहशत पैदा कर रही थी। एम्बर कभी खड़ी हो जाती, कभी बैठ जाती, कभी हाथ मिलती, कभी दरवाजे की तरफ देखती, जैसे अभी कोई डॉक्टर आएगा और अच्छी खबर देगा। मगर वक्त जैसे रुककर उन सब का इम्तिहान ले रहा था। फबियाहा और उसकी अम्मी भी अस्पताल पहुंच चुकी थीं। अम्मी के चेहरे पर खौफ था, आंखों में आंसू थे और कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे घर में खाने की चोरी, झगड़ा और बेइज्जती का मंजर अभी भी उनके दिल पर छुरी की तरह लगा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अचानक बढ़ती हुई हलचल देखकर सब के दिल जैसे पांव तले आ गए। डॉक्टरी और नर्सें एक दूसरे को हंगामी अंदाज में हदायत दे रही थीं। मेंटर पर चलती हुई तेज बीपंग की आवाज बाहर बैठे हुए हर शख्स के दिल में तीर की तरह लग रही थी। एम्बर घबरा कर आगे बढ़ने लगी मगर नर्सों ने उसे रोक कर पीछे हटा दिया। फबियाहा ने उसके कुंधे थाम लिए मगर खुद उसकी अंगलियां कांप रही थीं। एम्बर, बैठ जाओ बेटा, सांस लो, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अंबर की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था, चेहरे पर बेबसी की गांठें पड़ गई थीं और दिल में एक ही खौफ था, मगर अब चले गए तो मैं क्या करूंगी। अलियान एक कदम पीछे खड़ा अपनी मिठियां भैंचे सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती तो थी मगर अंदर दिल टूट रहा था। उसे याद आया कि सुबह ही आसिफ साहब उसे कह रहे थे, हाँ बेटा, घर के मामलात को समझदारी से चलाना, जज्बात से नहीं। और अब वही शख्स जिंदगी की आखिरी किश्मकिश में था। कॉरिडोर के एक कोने में महनूर की मां बैठी हुई थी। उसने अपनी चादर के पल्लू को हाथ से मुरुड़ते मुरुड़ते तकरीबन फाड़ दिया था। हर कुछ देर बाद वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता कहती, या अल्लाह, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। मगर उसकी आवाज़ अपने ही अंदर गुम हो जाती थी। महनूर ने एक सरद आ भरी और पीछे आकर खड़ी हो गई। वो भी अंदर ही अंदर डरी हुई थी। खाने की चोरी की वजह से फबियाहा और उसकी माँ की नज़रों में जो गिर गई थी वो भी उसके दिल पर भारी था। लेकिन अब हालात बहुत आगे बढ़ चुके थे। अब सिर्फ पाबंद जिंदगियों और उन्मूत का मसला था। वक्त गुजराता नहीं था मगर घड़ी की सुइयां चलती जा रही थीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अचानक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे का लाल बल्ब एक सेकंड को झपका। सबकी सांस रक गई। फिर अंदर से घबराहट भरी आवाजें और तेजी से हरकत करते हाथों के साए शीशे पर दिखाई देने लगे। एक नर्स तेजी से बाहर निकली, हाथ में सरंज पकड़े दौड़ती हुई। फौरन ब्लड लाओ, ओ नेगेटिव, अभी। एम्बर चेक कर आगे बढ़ी। क्या हुआ मेरे अबू को?
जवाब दें। नर्स एक लम्हा रखी मगर फिर कहा, यस डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका हार्ट रेट बार बार ड्रॉप हो रहा है, हमें वक्त चाहिए। ये अल्फाज सुनकर अंबर दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ गई, जैसे जमीन उसके नीचे से खसक गई हो। उसकी हचकियां पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थीं। फबिहा की अम्मी ने लरजती आवाज में कहा, लो पाक इस घर पर रहम कर दे, इन बच्चों पर रहम कर दे। अलियान के चेहरे पर पसीना चमकने लगा था। वो एक कदम आगे बढ़ा, दरवाजे को घूर कर बोला, ट्रैक्टर, आप लोगों ने कुछ कहा क्यों नहीं? मगर अंदर से सिर्फ मशीनों की बेपंग और भागते कदमों की आवाजें आ रही थीं। पूरे अस्पताल की फजा में खौफ का दबेज साया फैल चुका था। बिलाखिर इंतहाई आहिस्ता से दरवाजा खुला और एक सीनियर डॉक्टर बाहर आया। सफेद कोट पर खून के छिंटे थे, नीचे मासक के पीछे उसकी सांस भारी थी और उसने सबकी तरफ ऐसे देखा जैसे अल्फाज चुनते हुए भी तकलीफ हो रही हो। उसने तो अपनी पूरी कोशिश की है। इतनी देर में अंबर चीख मारकर खड़ी हो गई। नहीं, ये ना कहिए, मेरे अबू ठीक है ना? डॉक्टर ने सर झुका लिया। मगर हालात बहुत नाजुक हैं। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनकर पूरे कॉरिडोर में जैसे एक सर्द हुआ दौड़ गई। हालात बहुत नाजुक हैं। उस एक जमले ने सबके दिलों में एक ऐसा खौफ बो दिया कि कोई अपनी जगह से हल तक न सका। इंबर के होंठ कपकपा रहे थे, उसके हाथ एकदम ठंडे पड़ गए और आंखों में ऐसा खालीपन अभर आया जैसे किसी ने उसकी रूह छीन ली हो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर मासिक थोड़ा सा नीचे खींचा ताकि बात साफ सुनाई दे। गोली बहुत खतरनाक जगह लगी है, हमें उनका दिल दोबारा चलाने के लिए शाक देना पड़ा। खून बहुत ज्यादा बह चुका है। एम्बर ने हलक से रंधी हुई आवाज निकाली, ट्रैक्टर, मेरा अबू बच जाएंगे ना? डॉक्टर ने लम्हा भर उसकी आंखों में देखा। वहां बेबसी, खौफ और उम्मीद की आखिरी झलकें मौजूद थीं, मगर हकीकत सख्त थी। औला में कुछ वादा नहीं कर सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले चंद लम्हे फैसला कन है। यह सुनते ही अंबर की टांगें जवाब दे गईं और वो तकरीबन गर ही गई थी कि अलियान ने फौरन उसे पकड़ लिया। एम्बर, संभालो खुद को। अभी हिम्मत टूटती नहीं। वो उसे सहारा दे रहा था, मगर खुद उसकी आवाज भी भारी और कांपती हुई थी। फबिहा की अम्मी ने दोनों हाथ उठाकर दुआ में लगा दिए। इनके लब कांप रहे थे, आंसू दाढ़ी जैसी झरियों में बहते जा रहे थे। या रब्बुल आलमीन, इन घर वालों पर रहम कर, इन बच्चियों के सरों से साया ना उठा, कोई एक खुशी दे दे मौला। फबिहा ने अपनी अम्मी का हाथ थामा, मगर उसकी अपनी आंखें भी भर आई थीं। उसके जहन में सुबह का वो लम्हा गर्दिश करने लगा जब सब हंस रहे थे। आसिफ साहब चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे और आज वो मौत से लड़ रहे थे। जिंदगी कितनी बेवफा थी। चंद घंटों में सब कुछ अलट पलट कर दिया। महनूर की मन एक कोने में समट कर बैठी थी, खुद से बातें करती हुई। मैंने क्या कसूर किया था? बस एक प्लेट खाना ही तो खाया, इतनी नुस्त क्यों आ गई है हमारे साथ? लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। फबिहा की एक सरद निगाह भी उसकी तरफ नहीं गई। पूरे मंजर में सबकी तोजा बस एक चीज पर जमा थी, सब साहिब की सांस। वक्त का हर गुजरता लम्हा अजियत बन चुका था। दिल की धड़कने घड़ी की टक टक कॉरिडोर में चलती हुआ सब कुछ जैसे रख गया हो। फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर से तेज अलार्म की आवाज आई। ऐसी आवाज जो किसी के भी पैरों से जमीन खींच लेने के लिए काफी हो। नर्सें घबरा कर भागती नजर आए। एक डॉक्टर ने दूसरे को चिल्लाकर कहा, हार्ट रेट दोबारा ड्रॉप कर रहा है। दरवाजे के शीशे के पीछे तेजी से हरकत करते हाथ, शाक मशीन की तैयारियां, डॉक्टर के झुके हुए चेहरे, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। एम्बर ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और चीख कर रो पड़ी, या अल्लाह मेरे अबू को बचा लो प्लीज, अल्लाह प्लीज। अलियान उसके सामने झुककर बोला, एम्बर हिम्मत करो प्लीज, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मगर उसकी अपनी आवाज दम तोड़ रही थी। फबिहा की अम्मी फर्श पर सजदे में गिर गईं। महनूर की माँ घबराहट से दीवार पकड़कर खड़ी हो गई और पूरा अस्पताल जैसे एक दिल की धड़कन पर टुका हुआ था। चंद मजीद लम्हे, एक तवील अज़ियतनाक खामोशी, और फिर दरवाजा खुला। सीनियर डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर शदीद थिकन, आंखों में बोझ और सांस भारी थी। उसे देखकर सबकी सांसें अटक गईं। एम्बर आगे बढ़ी, इसके कदम लड़खड़ाए मगर वो रख न सकी। डॉक्टर ने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, हमें
दोबारा शाक देना पड़ा। अभी उनका दिल चल। डॉक्टर के अल्फाज ने अगरचा सबके चेहरों पर लम्हा भर की रोशनी जगा दी थी, मगर खौफ की एक मुड़ा तह अब भी फजा में फैली हुई थी। दिल चल रहा है मगर खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है। ये सुनकर अंबर ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मीच लें, जैसे शद्दी जज्बात से खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, मगर उम्मीद की पतली सी लकीर ने उसे दोबारा खड़ा रहने की ताकत दी। डॉक्टर ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, गोली जिस्म के अंदर बहुत गहराई तक गई है। हमें मजीद सर्जरी करनी होगी ताकि खून बहने को रोकें और दिल पर से दबाव कम करें। यह एक लंबा ऑपरेशन होगा, आप सब दुआ करें। और फिर वो वापस अंदर चला गया। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। सरखबती फिर जल उठी। एम्बर ने थकी हुई आवाज में अलियान से कहा, रब, अगर कुछ हो गया तो। उसकी आवाज टूट गई। बाकी जमला उसके होंठों तक आया तो था, मगर सांस में ही दम तोड़ गया। अलियान ने हल्के मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, जब तक डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल चल रहा है, बस इसी उम्मीद पर खड़े रहो। अभी हिम्मत नहीं हारनी है। मगर उसकी आंखों के अंदर खौफ किसी चीख की तरह गूंज रहा था। फबिहा उनके करीब आई, हिम्मत दिलाने की कोशिश करते हुए बोली, एम्बर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो आजमाता है मगर कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। एम्बर ने हाँ में सर हिलाया, मगर उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर कमरे के एक किनारे में महनूर की माँ अपनी चादर को मजबूती से लपेटे बैठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट, खौफ और पछतावे की अजीब सी मिली जुली तस्वीरें थीं। वो बार बार खुद से बड़बड़ा रही थी, मैंने खाना ही तो खाया था, उससे इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई? या अल्लाह, अगर मेरे कदम मनहूस थे तो मुझे उस घर में आने ही क्यों दिया? फबिहा ने उसे दौर से देखा मगर कुछ कहा नहीं। उस वक्त सबसे बड़ी हकीकत अस्पताल के दरवाजे के पीछे होने वाली सर्जरी थी। घंटे गुजरने लगे। हर मिनट सदी बनकर दिल पर गुजरता रहा। नर्सें कभी दौड़ कर जाती, कभी वापस आती। डॉक्टरों की हलचल कभी तेज होती, कभी खामोश, और बाहर बैठे लोगों की धड़कनें इस खामोशी के साथ साथ बढ़ते और घटते रहें। रात मजीद गहरी हो गई। अस्पताल के सफ़ेद फर्श पर ठंडक फैल गई। कॉरिडोर की लंबी ट्यूब लाइट्स की हल्की हल्की पिनबनाहट सुनाई देने लगी। सबके चेहरे थकान से पीले पड़ गए थे, मगर कोई अपनी जगह से उठना नहीं चाहता था, जैसे सब अपने वजूद को इसी दरवाजे पर टुकाकर खड़े हों। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा दरासा खुला। एक नर्स बाहर आए, हाथ में मेडिकल फाइल लिए। सब एक साथ खड़े हो गए। नर्स ने अंबर की तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, आपके अबू की सर्जरी जारी है, मगर एक बात, उनको अभी भी खून की जरूरत है। ओ नेगेटिव। अलियान फौरन आगे बढ़ा, मेरा ओ नेगेटिव है, मैं देता हूँ। नर्स ने हैरान होकर उसे देखा। आप? अच्छा, फौरन चलें, ये खून उनके लिए बहुत जरूरी है। हिम्बर ने अलियान का हाथ मजबूती से पकड़ा। आवा तो है जजादे, अगर अबू बच गए ना, मैं। उसकी आवाज भराई गई। अलियान ने उसका हाथ दबाया। तुम कुछ नहीं कहो, बस दहा करती रहो। नर्स अलियान को लेकर चली। हिम्बर उसे जाता देखती रही, जैसे वो अपने अबू की जिंदगी एक बार फिर उन्हीं के जरिए मिलने वाली हो। और फिर कॉरिडोर में एक और खौफनाक आवाज भरी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर से हद से ज्यादा तेज बीप, फिर चंद सेकंड की दहशतनाक खामोशी, फिर डॉक्टरों की चीख जैसी आवाजें। आसिफ साहब को अस्पताल लाया जा चुका था, लेकिन घर के अंदर जैसे आफत टूट पड़ी थी। हिम्बर का हाल बेहाल था। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने आप से पूछ रही थी कि आखिर उसके घर में इतनी मुसीबतें एक साथ क्यों आ रही हैं। दूसरी तरफ आलियान का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। इसे अपने बाप की फिक्र भी थी और हिम्बर के लरजते हाथ भी उसकी नजरों के सामने थे। वो उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसकी अपनी सांसें भी बेतरतीब थीं। घर के अंदर फबिहा और महनूर की माँ के दरमियान एक अलग ही तमाशा खड़ा हो चुका था। फबिहा गुस्से से कांप रही थी, आंखें सरख, लहजा तेज और सख्त हो चुका था। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बियाह चीख कर बोली, मैंने अपने हिस्से का खाना बनाया था, मेहनत से तैयार किया था, और आपकी माँ ने वो चोरी करके खा लिया। महनूर की माँ धटाई से कुंधे झटक कर बोली, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? घर में ही तो खाना था, भूखी थी, खा लिया। फबिहा का गुस्सा इस हद तक पहुंच चुका था कि उसके हाथ कांपने लगे। ये घर है या सुराय? वो चीखी।
एक तरफ आसिफ साहब को गोली लग गई है और दूसरी तरफ यहाँ खाने पर भी डाके पड़ रहे हैं। महनूर ने भी माँ का साथ देते हुए फौरन तेज लहजे में कहा, ड्रामा मत करो फबिहा, इतना ही दुख था तो दोबारा बना लेती। ये सुनकर फबिहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, यमन मैंने चोरों के लिए खाना नहीं बनाया था और तुम लोग ये घर बर्बाद करके छोड़ोगे। मैं ये आज की बात कह रही हूँ। पूरा घर चीखों, बहस और इल्जाम तराशी से गूंज उठा था। इंबर की परेशानी, आलियान की भाग दौड़, आसिफ साहब की जिंदगी खतरे में और ऊपर से घर के अंदर इस तरह के बेहुदा तमाशे। इसी हंगामा खेज माहौल में अचानक इंबर घर में दाखिल हुई। उसके दापटे के पलव पसीने और आंसुओं से भीग चुके थे। आंखें सर्ख थीं और सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे अभी अभी दौड़ कर आई हो। अंदर कदम रखते ही उसे फबिहा और महनूर की माँ की चीखें सुनाई दें। लम्हे भर के लिए वो रख गई, फिर गुस्से और बेबसी के दरमियान फंस कर एक चीख इसके गले से खुद निकल गई। खामोश हो जाओ सब, खुदा के लिए चुप हो जाओ। इंबर की आवाज़ में ऐसा दर्द था कि पूरे घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। महनूर की माँ भी एकदम चुप होकर पीछे हट गई। फबिहा ने घूमकर अंबर को देखा, फिर उसकी लपकती हुई आंखें देखकर दिल भर आया। इंबर रोहान सी आवाज़ में बोली, आसिफ साहब की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि गोली अंदरूनी हुस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा चुकी है। ये सुनकर महनूर की माँ के चेहरे का रंग भी उड़ गया और फबिहा के कदम डगमगा गए। इंबर ने भारी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग यहाँ खाने की चोरी पर लड़ रहे हो और वहाँ मेरा शोहर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आखिर ये घर किस तरफ जा रहा है? फबिहा ने आहिस्ता से आगे बढ़कर अंबर के कुंधे पर हाथ रखा। आप ही मुझे माफ कर दें, बस गुस्सा आ गया था। इंबर की आंखों से आंसू बह निकले। बस मैं रोज खुदा से दुआ करती हूँ कि ये घर सुकून देखे और यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। हम मुश्किल वक्त में हैं, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, दुश्मन नहीं। ऑन्स इतने में आलियान भी अस्पताल से वापस आ गया। चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा और थिकन दोनों का मिला जला अक्स था। वो सीधा सबके सामने खड़ा हुआ और गहरी आवाज में बोला, अगर किसी को भी इस घर में रहना है तो उसके उसूल होंगे, जिसे बर्दाश्त नहीं, दरवाज़ा खुला है। महनूर की माँ फौरन बोली, हमारे खिलाफ हो रहे हो, हम बेघर हो जाएं। आलियान ने सर्द लहजे में कहा, बेघर तो तुम लोग पहले ही हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के घर को बर्बाद करना शुरू कर दो। ये सुनकर महनूर की माँ के होंठ कांपने लगे, मगर बोलने की हिम्मत न हुई। फबिहा ने सिर झुका लिया। इंबर बैठ गई, हाथों से चेहरा ढांप कर हिचकियों के साथ रोने लगी। फदा में इतनी घटन, इतनी बेबसी भर गई कि किसी का दिल भी कांच की तरह टूट सकता था। घर की हवा बदल चुकी थी। आलियान के सख्त जुमलों के बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि जैसे दीवारें भी सांस रोके खड़ी हूँ। इंबर अब भी रो रही थी, लेकिन उसके आंसुओं में खौफ, दर्द और बेबसी का एक अजीब सा मिलाप था। आलियान ने अंबर की तरफ बढ़कर आहिस्तगी से कहा, आप परेशान ना हो, मैं कुछ भी होने दूंगा। अबू को बचाने की पूरी कोशिश की है, डॉक्टर्स उनकी हालत संभालने में लगे हुए हैं। ये बात कहते हुए भी उसकी अपनी आवाज़ लरज़ गई। वो इतना मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर का खौफ उसकी आंखों में वाज़ेह था। महनूर और उसकी माँ एक कोने में दबकी खड़ी थीं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हरकतों ने इस घर को कितना गैर मुस्तहकम कर दिया है, लेकिन शर्मिंदगी कम थी, अना ज्यादा। महनूर आहिस्तगी से बड़बड़ाई, हमेशा हम पर ही इल्जाम, जैसे हम ही सब मसले पैदा करते हैं। फबिहा ने फौरन पलट कर उसे घूरा, मसले तो तुम लोग ही पैदा करते हो, वरना अंबर आपी को इस हालत में कौन रुलाएगा। इंबर ने हाथ उठाकर दोनों को खामोश करवाया। बस करो, खुदा के लिए बस करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो कुर्सी से उठकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई, जैसे दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। वो धीरे से बोली, अगर आसिफ साहब को कुछ हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। ये जमला कमरे की हवा में तीर की तरह लगा। आलियान अपनी माँ के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, मामी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना, आपके लिए भी, अबू के लिए भी। इंबर ने उसके हाथ को थाम लिया, जैसे कोई डूबता हुआ आखिरी सहारे को पकड़ लेता है। उसी लम्हे फबिहा बोली, मैं अस्पताल जा रही हूँ अंबर आपी के साथ, इनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर महनूर की माँ ने तंजिया हनकारा भरा,
ड्रामे की हद नहीं है, सबको दिखा रही है कि कितनी फरमानबरदार है। आलियान ने गुस्से से घूर कर कहा, ओ, अब अगर आपने कोई बात की ना, मैं कसम खाता हूँ आप दोनों को इसी वक्त इस घर से निकलवा दूंगा। महनूर की माँ एकदम खामोश हो गई। पहली बार उसे अंदाजा हुआ कि आलियान मजाक नहीं कर रहा। अब फजा बदल चुकी थी। इस घर के हर फर्द पर एक अजीब सा दबाव, एक अनजानी घटन तारी थी, जैसे कोई बड़ी आफत दरवाजे पर खड़ी हो। उसी लम्हे अंबर को फोन आया अस्पताल से। उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया, हाथ कांपने लगे, सांस रुक सी गई। आलियान ने घबरा कर पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? अबू ठीक है ना? अंबर ने आहिस्ता से फोन नीचे किया और घटी हुई आवाज में कहा, डॉक्टर कह रहे हैं आसिफ की हालत बिगड़ गई है, उन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। पूरा घर जैसे जमीन बोस हो गया। ऑपरेशन थिएटर के लिए अंबर, फबियाहा और आलियान अस्पताल पहुंच गए। अंबर के कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में खौफ और दिल में इतराब की लहर थी। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही है। अस्पताल का सफेद फर्श, ठंडी रोशनी और बीपंग की मुसलसल आवाजें जैसे हर लम्हे उसके दिल पर हथौड़े की तरह गढ़ रही थीं। आलियान उसके करीब खड़ा था, हाथ पकड़कर सहारा दे रहा था, मगर खुद भी अंदर से लर्ज रहा था। फबियाहा चुपचाप अंबर के साथ चल रही थी, दिल में खौफ और जिम्मेदारी का बोझ लिए। वो जानती थी कि अब घर का हर झगड़ा, हर इल्जाम और हर चोरी का मसला लम्हे भर के लिए पस मंजर बन चुका है। अब सब की तवज्जो सिर्फ एक ही चीज पर मरकूज थी, आसिफ साहब की जान। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर और नर्सें भागते हुए बाहर आ रही थीं। डॉक्टर के चेहरे पर थिक्न, आंखों में शिद्दत और सांस भारी थी। एक नर्स ने फौरन बताया, दिल का रेट कम हो गया था, शाक देना पड़ा, खून की कमी है, फौरी ओ नेगेटिव चाहिए। आलियान फौरन आगे बढ़ा, खून देने के लिए तैयार हो गया। अंबर ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, आवा तुम्हें जजा दे, अगर अबू बच गए ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इस दौरान अस्पताल के कॉरिडोर में सबके दिल जैसे एक साथ धड़क रहे थे। महनूर और उसकी माँ एक कोने में दबकी हुई थीं, खौफजदा और शर्मिंदा। महनूर की माँ ने बार बार खुद से कहा, मैंने क्या बरा किया, बस खाना खा लिया था। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। अंबर के चेहरे पर खौफ, गम और उम्मीद की मिली जली हालत थी। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी थी, हाथ कानों पर रखे, हचकियां ले रही थी और हर लम्हा सोच रही थी कि अगर कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी। डॉक्टर दोबारा बाहर आए। मासक के पीछे आंखों में इतराब और थकन थी और बोले, हालात अब भी नाजुक हैं, ऑपरेशन जारी है, दुआ करें, अगले चंद लम्हे फैसला कुन होंगे। ये सुनकर अंबर की आंखों में आंसू और बढ़ गए। फबियाहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आलियान ने मजबूत लहजे में कहा, हम सब साथ हैं, हिम्मत मत हारो। पूरे अस्पताल में खामोशी छा गई। सरफ बीपिंग की आवाज और डॉक्टरों की हलचल सुनाई दे रही थी। सबके दिल धड़क रहे थे। हर लम्हा मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की सूरत हाल हर लम्हे के साथ और संगीन होती जा रही थी। आसिफ साहब के दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक कम हो गई थी और डॉक्टर्स और नर्सें हर लम्हे उसकी जान बचाने के लिए दौड़ धूप कर रही थीं। शाक मशीन की रोशनी चमक रही थी और बेपंग की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। हर आवाज जैसे दिल पर एक भारी पत्थर की तरह टुक रही हो। डॉक्टर्स एक दूसरे से तेज रफ्तार में हदायत दे रहे थे। खून के टेस्ट, ड्रिप और शाक देने की तैयारी, सब कुछ एक साथ हो रहा था। अस्पताल के कॉरिडोर में अंबर और आलियान बेबसी के मारे खड़े थे। अंबर के हाथ कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से भर गई थीं। हर लम्हा दिल में यही खौफ था कि कहीं उसके अबू के साथ कुछ न हो जाए। वो बार बार दुआ कर रही थी, जैसे अपनी दुआ में जिंदगी की आखिरी कश्ती बचाने की ताकत मांग रही हो। आलियान उसके साथ खड़ा, हाथ में पसीना और खौफ के बावजूद मजबूती दुखा रहा था, लेकिन अंदर से वो भी बेहद घबरा रहा था। फबियाहा भी साथ थी, चुपचाप अंबर के कंधे पर हाथ रखे, दिल में इत्तराब और जिम्मेदारी का बोझ लिए हर लम्हा नजरें ऑपरेशन थिएटर की तरफ जमाए। महनूर और उसकी माँ एक कोने में दबकी हुई थीं। महनूर की माँ का चेहरा खौफ और पछतावे से भरा हुआ था। वो बार बार सर हिलाकर कह रही थी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, बस खाना खा लिया था। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। महनूर भी खामोश खड़ी थी, अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और खौफ से जकड़ी हुई।
कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। मास्क के पीछे उनकी आंखें थिकन और इत्तराब से सरख थी। उन्होंने आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में कहा, हमने दिल को दोबारा रेगुलर करने के लिए शाक दिया है, मगर अब भी हालत नाजुक है। खून की कमी बहुत है, मजीद और नेगेटिव की ज़रूरत है। आलियान फौरन आगे बढ़ा, खून देने के लिए तैयार हो गया। इम्बर ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से कहा, ला तुम्हें। अस्पताल के कॉरिडोर में अंबर और आलियान बेबसी के मारे खड़े थे। इम्बर के हाथ कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से भर गई थीं। हर लम्हा दिल में यही खौफ था कि कहीं उसके अबू के साथ कुछ न हो जाए। वो बार बार दुआ कर रही थी, जैसे अपनी दुआ में जिंदगी की आखिरी कश्ती बचाने की ताकत मांग रही हो। आलियान उसके साथ खड़ा, हाथ में पसीना और खौफ के बावजूद मजबूती दुखा रहा था, लेकिन अंदर से वो भी बेहद घबरा रहा था। फबिहा भी साथ थी, चुपचाप अंबर के कंधे पर हाथ रखे, दिल में इत्तराब और जिम्मेदारी का बोझ लिए हर लम्हा नजरें ऑपरेशन थिएटर की तरफ जमाए। महनौर और उसकी माँ एक कोने में दबकी हुई थीं। महनौर की माँ का चेहरा खौफ और पछतावे से भरा हुआ था। वो बार बार सर हिलाकर कह रही थी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, बस खाना खा लिया था। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। महनौर भी खामोश खड़ी थी, अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और खौफ से जकड़ी हुई। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। मास्क के पीछे उनकी आंखें थिकन और इत्तराब से सरख थी। उन्होंने आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में कहा, हमने दिल को दोबारा रेगुलर करने के लिए शाक दिया है, मगर अब भी हालत नाजुक है। खून की कमी बहुत है, मजीद और नेगेटिव की ज़रूरत है। आलियान फौरन आगे बढ़ा, खून देने के लिए तैयार हो गया। इम्बर ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से कहा, आवा तुम्हें जजा दे, अगर अब वो बच गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इस दौरान अस्पताल में हर तरफ खामोशी छा गई। सरफ बीपिंग की आवाज़ और डॉक्टर्स की हलचल सुनाई दे रही थी। हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था। इम्बर के दिल की धड़कनें और सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं और हर आंख में खौफ, इंतजार और दहा का मिला जला एहसास था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की कशीदगी अपनी अंतहा पर पहुंच चुकी थी। आसिफ साहब के दिल की धड़कन मुसलसल गर रही थी और डॉक्टर्स एक दूसरे से हंगामी हदायत देते जा रहे थे। नर्सें खून के बेग ड्रिप्स और आलात के साथ दौड़ती जा रही थीं। शाक मशीन की रोशनी चमक रही थी और हर बीपंग की आवाज़ जैसे दिलों पर भारी पत्थर की तरह गूंज रही थी। डॉक्टर्स के चेहरे पर थिकन के साथ इत्तराब भी वाज़ेह था। हर लम्हा फैसला कुन था। ऑपरेशन के दौरान हर सेकंड अहम था। किसी भी छोटी गलती से आसिफ साहब की जिंदगी को खतरा लाहिक था। इस दौरान अस्पताल के कॉरिडोर में अंबर बेबस खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से सर्ख हो चुकी थीं और सांसें बेतरतीब थीं। हर लम्हा दिल में यही खौफ था कि कहीं उसके अबू के साथ कुछ न हो जाए। वो मुसलसल दुआ कर रही थी, जैसे अपनी हर दुआ में आसिफ साहब की जान की हिफाजत की ताकत मांग रही हो। आलियान उसके करीब खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हुए, आवाज में मजबूती दिखा रहा था।